आप कोर टेस्टिंग कंपनीज के बारे में बता सकते हो कि ये कंपनी क्या होती है? So basically, core testing company comes which provides QA as a service to different clients. The main skill set to go into a core testing company or even to be a great QA in your career is a constructive mind with a destructive approach. Their main focus is आपको टेस्टिंग की नॉलेज है या नहीं. अगर आपको टेस्टिंग की नॉलेज है, then only you are a good automation tester. What I learned from a core testing company, आपको बस बग हंटिंग नहीं करना है, यू नीड टू ऐड वैल्यू एज वेल. सो दिस इज द मेन डिफरेंस which I learned in core testing company and which I'm applying in my current companies as well. Most companies are looking for API automation क्योंकि UI frequently change होती है either for branding or marketing purpose. Testing is all about why to test, what to test and how to test. सिर्फ QA से related नहीं है. मार्केट में number of jobs थोड़ी कम है, but yeah, again I am saying if you have enough skill set, then definitely anyone can hire you. So client demonstration में the way a QA can present the product, the project, no one else can do. QA की बहुत अभी आजकल QA में वैल्यू एडिशन को लेके बहुत अवेयरनेस हो रखी है, बहुत अवेयरनेस हो चुकी है. फ्रॉम देयर ओन खाली बटन क्लिक करके वैलिडेशन चेक करना या फिर फॉर्म फिल करके फॉर्म की एंट्री चेक करना, दिस इज नॉट अ QA. उस फॉर्म को आप कैसे यूजफुल बना सकते हो, उसका डेटा को आप कैसे यूजफुल कर सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वैल्यूज व्हिच वी कैन ब्रिंग. हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है अनुराग, जिनको 9+ इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और ये QA लीड भी है। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे जो अभी तक हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं किया है, जैसे कि कोर टेस्टिंग कंपनीज क्या होती है, ये सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से डिफरेंट कैसे होती है. सो वेलकम अनुराग मेरे पॉडकास्ट में. हम लोग आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो ओवर टू यू अनुराग. Thank you, Siddharth. First of all, thank you very much for inviting me. So, hello everyone. My name is Anurag Arora, and जैसा सिद्धार्थ ने बताया, I'm having 9+ years of experience, and currently I am working in a service-based company known as Matilio. There I am working as a QA lead, and the main aim of this podcast is to make you guys aware about core testing company, product-based company, and service-based company. Like testing में क्या क्या differentiate होते हैं मेजरली इन तीन कंपनी में. सो दिस इज द मेन एम ऑफ दिस पॉडकास्ट. एंड अदर देन दैट, related to my experience, in those 9 years of experience I worked in, as I said, product, service and core testing company. So I worked as an automation engineer, I worked as a core performance engineer as well. Functionally testing definitely we all have to do, and now I am working as a QA lead, completely people management stuff. So well diversified. So we'll start. Over to you, Siddharth. या सो थैंक यू अनुराग इंट्रोडक्शन के लिए. तो हम लोग सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं कि कोर टेस्टिंग कंपनीज. आप कोर टेस्टिंग कंपनीज के बारे में बता सकते हो कि ये कंपनी क्या होती है? So basically, core testing company comes which provides QA as a service to different client. जैसे वेब डेवलपमेंट कंपनी होती है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी होती है, तो कुछ कंपनियां टेस्टिंग स्पेसिफिक होती है जो टेस्टिंग एज अ सर्विस डिफरेंट क्लाइंट को प्रोवाइड करती है. द कंपनी आई वर्क प्रीवियसली वाज मूल्या core testing company. We provide different QA services. Either it is automation testing, functional testing, performance testing, value addition as well. There are so many things which are different from normal testing and uh, the thing which we learn in a core testing company. So we provide all those to different clients. Some ERP level project, very huge customers, some startup giants. There are so many customers. So basically, companies who are providing QA as a service, and this is their main business, are known as core testing companies. ओके, सो इट्स मोर फोकस की मतलब जो भी टेस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटी होता है पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक, दैट इज वो कोर टेस्टिंग कंपनीज देखती है पूरा. Exactly. And the main thing what I learned from a core testing company, आपको बस bug hunting नहीं करना है. You need to add value as well. So this is the main difference which I learned in core testing company and which I'm applying in my current companies as well. तो क्योंकि आपने बताया कि आपने सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी काम किया है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी काम किया और कोर टेस्टिंग कंपनीज में भी काम किया है. तो आपको इन तीनों में क्या डिफरेंस लगा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसे होती है, सर्विस बेस्ड ऐसे होती है और कोर टेस्टिंग कंपनीज ऐसे काम करती है? तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? Sure, definitely. So
First, I'll start with service-based company, right? Service-based, I personally prefer to work in service-based company because they are more fast-paced, and I want a fast-paced environment where I get so many things to learn, uh, so many projects to work upon, different tools, different learning, different domain. सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द सर्विस बेस्ड कंपनी, जहाँ पे आपको बहुत सारे डोमेन पे काम करने का मौका मिलेगा, एक सिंगल डोमेन, मल्टीपल डोमेन, आपकी नॉलेज बेस भी बढ़ेगी, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट डिफरेंट टूल सेट भी आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा इफ यू आर इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, और वो बहुत फास्ट पेस्ड होती है. 14 days of sprint or 28 days of sprint, we have a fixed deadline, fixed deliverable, we need to achieve that. Service based fast based होती है and we need to deliver that with quality. This is service based. प्रोडक्ट बेस में मैंने क्या एज्यूम किया है, अगर आप प्रोडक्ट बेस पे हो तो आपको एक डोमेन से रिलेटेड आपका स्किल सेट इतना बढ़ जाएगा, यू विल गेन द एक्सपर्टाइज लेवल नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. एज आई वर्कड इन Cardico as well, this right, it is a product based company, so there I learned about so many stuffs which are related to the cars, how they generate lead and other stuff, how they manage lead. तो एक स्पेसिफिक डोमेन में आप एक्सपर्टाइज लेवल की नॉलेज अगर गेन करना चाहते हो, then you need to move towards product based company. Product based company का main advantage एक ये रहेगा, अगर आपका इंटरेस्ट है then definitely not just bug hunting, आप उसमें बहुत सारी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो. वैल्यू एडिशन एज इन आप अपने कंपेटिटिव एनालिसिस करो, उस कंपेटिटिव एनालिसिस के बेस पे आपको मिलेगा अपना प्रोडक्ट कहाँ लैग कर रहा है या फिर कहाँ अपने पास वो फीचर है बट अपन उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन लर्न इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एज वेल. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थोड़ी सी स्लो पेस्ड होती है बिकॉज अपना खुद का प्रोडक्ट है, अपन कोई फीचर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन we found out like no, we need to change this feature and we need to implement it in that way that will make it more user friendly. तो आप अपने हिसाब से उसकी टाइमलाइंस वगैरह डिफाइन कर सकते हो, अपने पॉइंट्स रेज कर सकते हो कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस बट नाउ वी फाउंड इट लाइक लेस यूजफुल, डूइंग दिस विल मेक इट मोर फिजिबल फॉर एंड यूजर. तो थोड़ा सा स्लो पेस्ड होती है बट डेफिनेटली एक स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में. नाउ कम टू द कोर टेस्टिंग कंपनी. कोर टेस्टिंग कंपनी में या तो आपका क्लाइंट प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है, जनरली स्टार्टअप अब वहां पे हमारे क्लाइंट थे तो वो एक कोर प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, या फिर कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए भी हम सर्विसेज देते थे जहां पे हम क्लाइंट की डिपेंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से 14 डेज स्प्रिंट चलता था या जितने दिन का स्प्रिंट चलता था. तो कोर टेस्टिंग का एडवांटेज एक ये रहता है, आपको बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे न्यू वेज ऑफ टेस्टिंग आपको सीखने को मिलती है. डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी डे बाय डे आ रहा है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट फंक्शनल टेस्टिंग, सो मेनी कंपनीज आर स्टिल फॉलोइंग सेम ट्रेडिशनल अप्रोच. स्प्रिंट स्टार्ट कर देंगे, रिक्वायरमेंट ले लेंगे, जैसे ही प्रोजेक्ट किक ऑफ करेगा तभी टेस्टर को इन्वॉल्व करेंगे. क्यों? क्योंकि उनका लिमिटेड बजट होता है, टेस्टर को जल्दी इन्वॉल्व किया, उसकी बिलिंग अपने प्रोजेक्ट से शुरू हो जाएगी. तो इस तरह की चीजें काफी कोर टेस्टिंग कंपनी से मुझे सीखने को मिली है, क्योंकि क्यूए का काम सिर्फ बग हंटिंग नहीं है, वैल्यू एडिशन भी है. तो हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम फॉर द प्रोजेक्ट और द प्रोडक्ट वी आर वर्किंग अपॉन, those things I learned in a core testing company. Basically, the value addition which a QA can add into the project or a product, that I learned from a core testing company. So these are basically three things I found in product based, service based, and core testing. Again, my preference is always service based company because I loved fast paced environment, because there are so many things for learn. Might be you can say कि सबकी अलग अलग थिंकिंग रहती है. मुझे ऐसा है जहाँ पे मेरे थोड़ा मुझे डेडलाइन टाइम मिल जाएगा ना, तो मैं उसको और अपनी तरफ से 100 मोर देन 100% डाल के उसको और अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ. सो या दिस इज ऑल अबाउट सर्विस, प्रोडक्ट एंड कोर टेस्टिंग कंपनी एज पर माय एक्सपीरियंस. करेक्ट, मतलब आपको थोड़ा एक्सप्लोरेशन ज्यादा चाहिए इसलिए आप प्रेफर करोगे सर्विस बेस्ड कंपनी कंपेयर टू अदर कंपनीज. एग्जैक्टली, एज आई सेड फास्ट पेस, क्योंकि अगर हमको 14 डेज की टाइमलाइन रहती है, हमारे पास फिक्स डिलीवरेबल है, तो मैं कैसे उसमें वैल्यू एडिशन कर सकूं जिससे मेरा फ्रॉम नेक्स्ट स्प्रिंट ऑनवर्ड्स ही मेरा रिपीटेटिव काम कम हो जाए. प्लस क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जनरली क्या होता है, कुछ चेंज लाना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि लेगेसी चीजें चलती आ रही होती है, एंड बड़े प्रोडक्ट को वो स्विच करना टफ रहता है. So from the beginning, service-based company, you need to convince client. First of all, you need to identify correct tool for the project. If you are going towards automation and कुछ और जैसे stuff आ जाते हैं तो उसके लिए कोई tool आप implement करना चाहते हो, add on करना चाहते हो,
तो उसका डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट को कन्विंस करना, उसके लिए उसकी यूजफुलनेस बताना, that will increase your professional growth as well, how to convince your client. So these kind of things majorly comes under service based company, so that I learned. That's why I basically love working in a service based company. तो कोड टेस्टिंग कंपनीज जैसे आपने बोला कि पूरा टेस्टिंग पे ही फोकस करता है, मतलब किसी और ने शायद प्रोजेक्ट बिल्ड किया रहेगा, डेवलपमेंट किया रहेगा, बराबर? एग्जैक्टली जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कंपनी है ए है, वो अपना एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है, प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, दे ऑल द डेवलपमेंट टीम, इवन टेस्टिंग टीम इन हाउस, but they will reach out to a core testing company as they have expertise working in software testing specifically. So obviously they can add some value, not just bug hunting, they can add some value. So to gain that value addition, or jo value core testing company provide kare, that's why those product based company or startup core testing company ko reach karte hain, like we are having this and we want your services to make our product improve. So what core testing company do, they do a software testing round as well, and other than that there are some other certain things like how to add values. Those are basically related to the product management and other stuffs. Those are also learned as a part of core testing company, that I learned, and I'm very thankful of my previous organization. So these kind of value addition which we do for those companies, this is basically a differentiator from a normal QA services and then a core testing company, because it is QA services plus value addition. और जो कंपनी से आपको आता है कोड टेस्टिंग के लिए, वो लोग भी एक राउंड टेस्टिंग करते हैं, बट नेक्स्ट लेवल एक एडिशन के लिए कोड टेस्टिंग कंपनीज पिक्चर में आ जाती है। Exactly. Sometimes they have their own QA, in-house QA, and sometimes they don't. So it depends on client to client. ओके, तो कोड टेस्टिंग कंपनीज नॉर्मली स्टार्टिंग में नहीं आता, टेस्टिंग फेज में हमने डेवलपमेंट कर दिया और टेस्टिंग भी कर दिया, उसके बाद देन कोड टेस्टिंग कंपनीज पिक्चर में आ जाते हैं। Exactly. In general scenario, this is the picture. But right now, as some of the core testing companies have name set as a brand value, right? They already a big name, a big brand. So from the very beginning, clients started syncing with us. They started value addition program with us, and then from the very beginning, we show our worth, right? हम अपनी वर्थ खुद ही बताते हैं कि नहीं, ये आपका SRS फेज में यहाँ पे करेक्ट लिखा है, लेकिन वी हैव डन कंपेटिटिव एनालिसिस, अगर आप इसमें ये वैल्यू एडिशन कर दोगे, या फिर ये फीचर की आपने यहाँ पे यूआई की डिजाइन तो बनवा दी है, लेकिन एज पर मी दिस इज नॉट गुड, अगर ये यहाँ पे अपन इसको टेक्स्ट की जगह एक आइकन यूज करके दिखा सकते हैं, दैट विल मोर usable and it will look good on your site. So these kind of things also we are doing. तो ये भी एक हो सकता है कि हम लोग कोड टेस्टिंग कंपनीज को जितना जल्दी इन्वॉल्व करें टेस्टिंग में, उतना क्वालिटी बेटर भी होगा और प्रोडक्ट भी शायद फास्ट लॉन्च हो जाएगा, रेदर देन लास्ट में हम लोग। Exactly. Not just core testing company. हर एक कंपनी के लिए either it is a product based or a service based. Traditional approach different थी. वहां पे क्या जनरली क्या होता था, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता, डेवलपमेंट खत्म होने के बाद टेस्टिंग शुरू होती थी. स्लोली इन एजाइल अभी भी जनरली कुछ कंपनीज क्या फॉलो करती है कि कुछ परसेंटेज ही क्यूए को अलोकेट करते हैं, राइट? लाइक ओवरऑल प्रोजेक्ट में सपोज 100 आवर का वर्क है, देन 25 आवर्स क्यूए का लेगा, या फिर इन टर्म्स ऑफ एजाइल 4 डेवलपर अपन कर रहे हैं तो एक क्यूए का रहेगा, या फिर स्टार्ट के स्प्रिंट्स में हम सारे डिलीवरेबल भेज देंगे, बेसिक डिलीवरेबल्स होते हैं, मेजर कोर फंक्शनैलिटी तब भी हम क्यूए को इंट्रोड्यूस करेंगे बिकॉज इट विल सेव आवर कॉस्ट. This is not correct. Either it is a core testing company or product based company or service based company. आप QA को स्टार्ट से इन्वॉल्व करेंगे, then definitely I am 100% sure as per their own experience they will definitely bring some value in the project. And definitely we started seeing results in our IT culture nowadays. QA की बहुत अभी आजकल QA में वैल्यू एडिशन को लेके बहुत अवेयरनेस हो रखी है, बहुत अवेयरनेस हो चुकी है. फ्रॉम देयर ओन खाली बटन क्लिक करके वैलिडेशन चेक करना, या फिर फॉर्म फिल करके फॉर्म की एंट्री चेक करना, दिस इज नॉट अ क्यूए. उस फॉर्म को आप कैसे यूजफुल बना सकते हो, उसका डेटा को आप कैसे यूजफुल कर सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वैल्यूज व्हिच वी कैन ब्रिंग. So this is basically related to all company, either it is core testing company or a product based company, service based company. Being in a core testing company, एक advantage ये रहता है, we can stick to our goal, right? हम तो इसी प्रोसेस से चलते हैं, by this way only we can add value.
सर्टेन थिंग्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको लेगेसी कोड के अकॉर्डिंग अपना चेंज करना पड़ सकता है, या फिर यू हैव टू स्विच समथिंग एल्स, या फिर आपका क्लाइंट बेस ही ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट स्टेबल है आपका, लेकिन आपका क्लाइंट बेस को ये चीजें करवानी ही नहीं हो, पसंद ही नहीं हो। सर्विस बेस्ड कंपनी में बजट चैलेंज हो सकता है, बजट कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, टाइमलाइन कंस्ट्रेंट हो सकता है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो सकता है, टूल कंस्ट्रेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। सो दीज आर द बेसिकली डिफरेंशिएटर बिटवीन ऑल दोस टाइप्स ऑफ कंपनीज। करेक्ट। तो आपने अभी समझो कि हमने कोड टेस्टिंग कंपनीज के बारे में डिस्कस किया और अभी मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे कोड टेस्टिंग कंपनीज में जाना है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कैसे कर सकता हूँ? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? सो बेसिकली कोड टेस्टिंग कंपनी में अगर आपको जाना है तो इसके लिए यू डोंट नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। आपके अगर बेसिक क्लियर है ना, बेसिक क्लियर है, तो यू विल डू ग्रेट। वहां पे मैंने ये फेस किया है कि हम ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोग्रामिंग बहुत एक्सेप्शनल है तो ही हमको लेंगे। इफ यू आर अप्लाइंग एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर, देयर मेन फोकस इज आपको टेस्टिंग की नॉलेज है या नहीं। अगर आपको टेस्टिंग की नॉलेज है, देन ओनली यू आर अ गुड ऑटोमेशन टेस्टर। ऐसा नहीं है आपको प्रोग्रामिंग सब कुछ आती है, आप टिपिकल से टिपिकल लॉजिक्स हैंडल कर सकते हो। अगर आपके टेस्टिंग के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, देन हाउ यू विल परफॉर्म टेस्टिंग, बिकॉज ऑटोमेशन टेस्टर को पास भी अगर मैनुअल से प्रॉपर टेस्ट केसेस रिटर्न में नहीं मिलेंगे, तो वो क्या राइट करेगा अगर वो खुद चीजें ब्रेक नहीं कर सकता है। सो द मेन स्किल सेट टू गो इनटू कोड टेस्टिंग कंपनी, or even to be a great QA in your career, is a constructive mind with a destructive approach. This is what I feel. आप कंस्ट्रक्टिवली कैसे अपने फीचर को ब्रेक करके उसमें से बग निकाल सकते हैं और कैसे उसमें कंस्ट्रक्टिवली वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, दिस इज द मेन थिंग अ क्यूए शुड हैव। आपने बहुत बराबर, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही आ गया क्यूए के लिए। एग्जैक्टली। तो नॉर्मली क्या होता है सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, उसमें कैसे अगर हमको ऑटोमेशन करना है तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कौन सा टूल्स यूज करें। तो कोड टेस्टिंग कंपनीज में वो लोग खुद का टूल बनाते हैं या वो लोग भी जो ऑटोमेशन टूल्स देखते हैं कि प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सा ऑटोमेशन टूल सूट हो रहा है वही यूज करते हैं, कि दे हैव देयर ओन टूल्स आल्सो, कि हाँ इन बिल्ड भी, मतलब इन हाउस भी उन्होंने ऑटोमेशन टूल्स बना के रखे और वो लोग वही यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जो फिजिबल होता है। ऐसा नहीं है हमने इन हाउस बना दिया तो हम उसी को पे करेंगे, उसी से या तो एज अ प्रोडक्ट अपन दूसरा प्रोजेक्ट क्लाइंट को सेल कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए जो फिजिबल होएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ सिलेनियम ही है ऑटोमेशन के लिए, देयर आर सो मेनी टूल्स, बहुत सारे टूल्स है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टाइप कौन सा फिजिबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। एक मेजर चीज ये है, जीरा तो टास्क मैनेजमेंट के लिए सब जानते ही हैं, टेस्ट मैनेजमेंट को भी कुछ प्रायोरिटी मिलती है। तो टेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कुछ टूल है तो वो कुछ इन हाउस डेवलप थे मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, वो है। बट इन जीरा इफ वी कैन से देयर आर एक्स-रेज, एफर्ट, देयर आर सो मेनी टेस्ट मैनेजमेंट टूल व्हिच कैन बी इंटीग्रेटेड विद जीरा। तो टेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी मिलती थी एंड वी इंटीग्रेटेड दोस काइंड ऑफ टूल्स विद इन जीरा टू मेक टेस्टर्स लाइफ इजी। तो लेकिन तो फिर कोड टेस्टिंग कंपनीज के पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए, प्रोडक्ट बेस होगा, सर्विस बेस होगा, स्टार्टअप भी होगा। तो हर एक क्लाइंट के हिसाब से फिर वो लोग डिसाइड करते थे कि हम लोग को ये ऑटोमेशन टूल यूज करना है, फिर वो लोग करते थे। तो इससे वो कंपनी को मेंटेनेंस वाइज, मतलब इतने सारे क्लाइंट्स हो गए तो हर एक के लिए शायद ऑटोमेशन टूल अलग अलग भी रिकमेंडेड हो सकता है। तो ये डिफिकल्ट नहीं हो जाता होगा कोड टेस्टिंग कंपनीज के लिए फिर? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन टेस्टिंग। वहाँ पे आपको मल्टीपल स्किल सेट के बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे। तो जैसे ही क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट लेके अपने पास आता है कि हमारे प्रोजेक्ट का डोमेन ये है, तो अपन चेक करते हैं अपने कि भाई इस तरह के डोमेन में हमने पहले काम कर रखा है या नहीं। अगर कर रखा है तो उसके एक्सपीरियंस लेवल पे जो भी हमारी टीम में अवेलेबल है, हम उससे एक कॉल शेड्यूल करवाते हैं। देन दे डिसाइड कि कौन सा टूल आपके लिए फिजिबल रहेगा, कौन सा। इफ दे आर बिल्डिंग देयर ओन इन हाउस, जैसा मैंने आपको बताया कुछ की इन हाउस टीम भी होती है, अगर उनका कुछ इन हाउस चल रहा है तो कैन वी यूज दैट। अगर उसी को यूज करना है तो उसमें क्या एनहांसमेंट करना है। अगर आपको वो यूज नहीं करना तो यूज क्यों नहीं करना है, विद प्रॉपर रीजन, क्योंकि प्रॉपर रीजन के साथ ही जाएंगे। अदरवाइज वाई क्लाइंट, वहां पे भी उसने बहुत सारा अपना टाइम और एफर्ट वहां पे लगा रखा होगा, तो ऐसे तो क्लाइंट मानेगा नहीं कि नहीं हमने आपको लिया, ऐसा नहीं आप टूल चेंज कर दो। तो वी गो विद प्रॉपर फ्लो। देयर आर सर्टेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, एक प्रॉपर हायरार्की चलती है। एक टेस्ट मैनेजर होता है, एक टेस्ट लीड होता है, उस टेस्ट लीड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल के क्यू होते हैं। So test manager and test lead are the one who communicate with the clients. They check all the feasibilities. They check tool related discussion. They take participation in tool related discussion,
and everything. So on basis of those discussion, we finalize what tool we need to introduce in the project or product they have, और अगर उनका कुछ ऑलरेडी चल रहा है तो कैन वी यूज दैट और नॉट. सो दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर चेंजेस. जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, देन टीम लीड होते हैं, देन उसके अंडर में टीम काम करती है. सेम वही टेस्टिंग कंपनी में भी यही आर्किटेक्चर रहता है. एक टेस्ट मैनेजर होता है, टेस्ट मैनेजर के अंदर में मल्टीपल टेस्ट लीड होते हैं. वो टेस्ट लीड अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, और उन टेस्ट लीड के अंदर में मल्टीपल सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं. नॉर्मली कोड टेस्टिंग कंपनीज में एक्सप्लोरेशन ज्यादा मिल जाता हो क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स हो गए, तो उनके लिए क्या रेकमेंड करना है, थोड़ा थिंकिंग भी मतलब अपना दिमाग भी चालू हो जाता है कि इसके लिए ये यूज कर रहे हैं, इसके लिए तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को पता Exactly. रहता है कि ये प्रोजेक्ट आएगा तो हम लोग को ये ऑटोमेशन टूल यूज करना है, ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना है. एग्जैक्टली. नाउ डेज चैट जीपीटी है, वहां पे आप कुछ भी लिख दो मिल जाता है. लेकिन टेस्टिंग बेस्ड कंपनी में आपको किसी तरह का डाउट होता था ना, कि मेरे पास एक इस तरह का बहुत टफ सिनेरियो आ गया है, तो इसके और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, कैसे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे मैं इसमें वैल्यू ऐड करता हूँ. तो जनरल चैनल है, वहां पे आप पेस्ट कर दो आपकी प्रॉब्लम, और इतने टेस्टिंग माइंड आपके साथ काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको ऐसा सोल्यूशन बताए विच यू कैन नॉट थिंक ऑफ, बिकॉज my mind is different to see a thing, your mind is different, someone else will mind it. So definitely you will get great help from those people. So करेक्ट. एक ही एडवांटेज और है. तो अनुराग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं समझो कि नॉन आईटी में हूँ और मुझे हम्म. क्यूए में करियर स्टार्ट करना है और कोड टेस्टिंग कंपनीज के लिए, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? So if you are नॉन आईटी पर्सन और अगर आपको क्यूए में स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बड़ा काम नहीं है. आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आप आईटी में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपके पास एनालिटिकल थिंकिंग है, और जैसा मैंने पहले भी बोला, कंस्ट्रक्टिव माइंड है, टेस्टिंग इज ऑल अबाउट व्हाई टू टेस्ट, व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट. आपको कोई चीज दी गई है कि आपको ये करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये मैं क्यों करूं, तो फिर ये बताएगा अब इसका मैं क्या करूं और ये मैं कैसे करूं. अगर आप ये तीन चीजें पूछ लेते हो, टेस्टिंग भी यही है. व्हाई टू टेस्ट, व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट. हाउ टू टेस्ट यू विल डेफिनेटली गेन आफ्टर एक्सपीरियंस, राइट. टेस्टिंग ऐसी होती है जो आप पढ़ के नहीं सीख सकते. जैसे जैसे यू विल गेन सम एक्सपीरियंस, आपको ऑटोमेटिक सिनेरियोज आपके माइंड में आते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे तो डेफिनेटली ब्रेक हो सकती है एज पर माई एक्सपीरियंस, तो आप उसी वे में जाते हो. अगर आपके पास अच्छी एनालिटिकल स्किल है, if you can ask question, then definitely you can move towards and enter into QA community, and definitely you can be a great QA if you can ask questions. So the major skill is definitely analytical skill and asking question. This is basically two must-have skill for a non-IT person enter into software testing industry. And slowly, when you learn how to test, then definitely there are so many things you can go ahead in your career. बेसिकली ये समझना है कि कस्टमर कैसे यूज करने वाला है हमारा प्रोडक्ट और कस्टमर को क्यों चाहिए. अगर ये समझ लिया तो टेस्टिंग भी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है. Exactly. तो अनुराग मुझे एक बात बताओ कि क्यूए में भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे करियर में, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि अगर मैं क्यूए में हूँ तो मेरे क्या क्या ऑप्शंस है मेरे करियर में? सो क्यूए का करियर पाथ जनरली ऐसा देखा जाता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्यूए मैनेजर पे लाके कुछ आगे पोस्ट नहीं होती है, बट क्यूए का करियर पाथ बहुत बहुत वाइड है, बहुत वाइड है. जितनी ब्रांचेस क्यूए के लिए निकल सकती है ना, उतनी तो आई गेस किसी के लिए नहीं निकल सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज ए क्यूए स्टार्ट कर रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट इफ यू हैव लेस और इंटरेस्ट इन कोडिंग, देन आप फंक्शनल क्यूए से अपना करियर आगे प्रोसीड कर सकते हो. आपको कोडिंग की नॉलेज है, देन डेफिनेटली यू कैन मूव टुवर्ड्स ऑटोमेशन डायरेक्शन. ऑटोमेशन में भी मल्टीपल है, वेब ऑटोमेशन, एपीआई ऑटोमेशन, मोबाइल ऐप ऑटोमेशन. ठीक है, तो ऑटोमेशन में भी तीन अलग अलग ब्रांचेस निकल गई है. बिकॉज नाउ डेज व्हाट हैपन, most companies are looking for API automation, क्योंकि UI frequently change होती है either for branding और marketing purpose. तो API automation का अभी बहुत बूम चल रहा है. तो ऑटोमेशन में भी तीन आ गए. उसके बाद टेस्टिंग के सबसे नीश अगर देखा जाए तो वो होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जो मैं पिछले 3 साल से करता आ रहा था. आई वॉज वर्किंग एज अ को परफॉर्मेंस इंजीनियर एज वेल. सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग बहुत नीश है, मनी मेकिंग भी है डेफिनेटली. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. आपका न्यू सिस्टम कितना लोड ले सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो सारे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के आ जाती है. Nowadays आफ्टर कोविड वैल्यू एडिशन के लिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें परफॉर्मेंस एक पार्ट हो गया. अदर देन दैट एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग भी कुछ होती है स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, दैट इज कंप्लीटली सेपरेट पार्ट. सो एक्सेसिबिलिटी टेस्टर की भी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट आती है.
we want an accessibility tester who can check a system for specially abled people. There are certain openings for a specific UI UX tester only, जो सिर्फ UI और UX में अपने input डाल सकता है. So these are the different career path, and moving towards definitely you can work as an individual contribution till you want. Then you can move towards lead as well, test manager as well. And if you have certain skill set, then definitely a delivery manager or a delivery head, a VP delivery, these kind of posts also can be taken by the QA person. और अगर क्यूए को कोडिंग नहीं आती है तो थोड़ा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बीए प्रोडक्ट ओनर वो साइड भी वो मूव हो सकता है क्यूए. Exactly. If you have good communication skill, then definitely this one thing, because बीओ को तो पता ही होता है क्योंकि वो क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है और यहाँ डेवलपर से सिंक करके सारी चीजें बताता है. उसके बाद आई गेस क्यू ही एक ऐसा पर्सन होता है जिसको प्रोजेक्ट का इन एंड आउट सब पता है. एंड इफ ही और शी इज गुड इन कम्युनिकेशन, देन डेफिनेटली बीए को भी ओवरकम कर जाता है वो. क्यों? क्योंकि उसको सिस्टम में अंदर जो चल रहा है इन एंड आउट वो भी पता है. एंड इफ वी कैन कम्युनिकेट दोस थिंग्स प्रॉपरली to client and can think as an end user, then definitely BA and slowly move towards a product manager kind of role is also a possibility for a QA person. हाँ, नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं कि क्यूए एक बेटर बीए बन सकता है क्योंकि उसको पता है कैसे तोड़ना है और कैसे क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी समझ में आ जाएगी. तोड़ना भी है और जोड़ना भी है. दोनों क्योंकि करना जनरली है. ऐसा होता है क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेशन पे. जनरली अगर क्यूए परफॉर्म करता है क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेशन, ही नोज उसके सिस्टम में कहाँ लैग कर रहा है और कहाँ पे उसके सिस्टम की यूएसपी है. तो क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेशन में द वे अ क्यूए कैन प्रेजेंट द प्रोडक्ट, द प्रोजेक्ट, नो वन एल्स कैन डू. इवन अ बीए कैन नॉट डू. करेक्ट. हाँ, तो आपने क्योंकि अपने परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में भी बोला, तो नॉर्मली क्या होता है जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करते हैं ना सिर्फ एक जेमीटर टूल ही याद आता है कि हाँ Exactly. जेमीटर. तो ऐसा माना जाता है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज इक्वल टू जेमीटर. तो आप बता सकते हो क्या कि नहीं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में भी अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें भी क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. So when I started my career, after 3 to 4 years of experience, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बताता हूँ why I choose to work as a performance engineer. So वहाँ 3-4 साल बाद मेरे को जेमीटर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था एंड आई थॉट जेमीटर में जो मुझे आ गया एंड नाउ आई कैन बिकम अ परफॉर्मेंस इंजीनियर. बट जैसे मैंने परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्सप्लोर करना शुरू किया, जेमीटर और स्क्रिप्टिंग इज ओनली 5% ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में एज पर मी व्हाट आई फील, स्क्रिप्ट क्रिएशन इजी, बट आपको क्या टेस्ट करना है और रिजल्ट का एनालिसिस इज द टफेस्ट पार्ट. सो रिजल्ट एनालिसिस बहुत मेजर एक क्रिटिकल चीज होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस में, क्योंकि वहां पे आपको डिफरेंट स्पाइक रीड करने होते हैं, डिफरेंट एंड पॉइंट्स रीड करना होता है. स्क्रिप्ट आप बना लोगे, टेस्ट आप कर लोगे जैसे करना हो, लेकिन उसको एनालाइज करके आप रिजल्ट कैसे पब्लिश करोगे और क्या वो रिजल्ट प्रॉपरली वैलिड है या नहीं है, ये भी प्रॉपर डेटा के साथ. सो जेमीटर ही खाली परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं है, देयर आर सो मेनी टूल्स. ग्राफाना की बाना, इन पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिससे हमको एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है अपने डेटा का. डेटा डॉग होता है, डायनाट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लॉग रीडिंग होती है. एट सर्टेन टाइम हमको क्लाउड भी मॉनिटर करना पड़ता है, उसकी नेटवर्किंग चीज है. तो खाली जेमीटर की स्क्रिप्ट बना लिया, ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं है. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में स्क्रिप्ट क्रिएशन बहुत लेस पार्ट है. रिजल्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई आपको क्या टेस्ट करना है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं. इधर यू नीड टू सेट अ बेंचमार्क या फिर आपको सिस्टम को पूरा सैचुरेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा. देन यू कैन क्रिएट योर स्क्रिप्ट. देन स्क्रिप्ट क्रिएट करने में उसको किस वे में रन करना है सो दैट यू कैन कम टू अ कंक्लूजन. सो रिजल्ट एनालिसिस एंड टू कम टू अ कंक्लूजन इज like far more the toughest part, the toughest thing I have in my career, and obviously the most interesting one as well. So this is about performance testing. So JMeter खाली performance नहीं, so many tools, there are so many tools. और उसमें समझना भी पड़ता है कि बेंचमार्क टाइम है, उससे कितना ऊपर गया तो चलेगा, उससे कितना Exactly. मतलब लिमिट्स पता होना चाहिए अपने को, नहीं तो पता चला कि प्रोडक्शन में वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा जो भी हम लोग ने बनाया है. Exactly. There are so many things here also we can add as a value. Suppose you are working and taking AWS EC2 instance, then हमको Google Cloud पे भी हम चेक कर सकते हैं. गूगल क्लाउड भी अपने को 2 वर्चुअल सीपीयू सपोज प्रोवाइड कर रहा है. देन इन दैट टर्म वी कैन एनालाइज लाइक सेम मेरे को वहां पे भी मिल रहा है. प्रोसेसर अपन चेक कर सकते हैं. देन कॉस्ट आल्सो टेक पार्ट. तो अपन क्लाइंट को
प्रॉपर डेटा के साथ जा सकते हैं कि हमने जीसी पे भी टेस्ट किया और ये हमने एडब्ल्यूएस पे भी टेस्ट किया। जीसीपी पे हमको सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, बट यू कैन सेव सो मेनी डॉलर्स, राइट? क्योंकि उनके पॉइंट में प्राइस भी ऐसा हो जाता है, एक मंथ का डेटा में भी यू कैन से सो मेनी डॉलर्स। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प अस टू रिटेन क्लाइंट। सो डेफिनेटली एक वैल्यू एडिशन भी होता है, एंड क्लाइंट का अगर पैसा बच रहा है तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत खुश होएगा। करेक्ट, हाँ। तो अनुराग, मैंने देखा कि आपने अभी रिसेंटली स्विच किया है, कुछ 4-5 महीने पहले ही। हाँ तो जी। नॉर्मली ऐसे बोल रहे हैं कि अभी का करंट मार्केट इतना अच्छा नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, क्यूए के लिए जॉब मार्केट कैसा है? अच्छा है, बुरा है, ओपनिंग्स ज़्यादा है, कम है? आपको कैसा लगा उसके बारे में? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग तो अभी कम है, बट इफ यू आर ए स्किल्ड पर्सन देन डेफिनेटली नथिंग कैन स्टॉप यू, राइट? अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है तो आपको कोई टेंशन की नहीं है। यू कैन लर्न थिंग्स एट योर विल। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन विद योर करंट जॉब रोल, आपको सीखने को नहीं मिल रहा है, बट यू आर टैलेंटेड इनफ, यू हैव दैट स्किल सेट, देन डेफिनेटली नथिंग कैन स्टॉप यू। सो द ओनली थिंग एज ऑफ नाउ, सिर्फ क्यूए से रिलेटेड नहीं है, मार्केट में नंबर ऑफ जॉब्स थोड़ी कम है, बट या अगेन आई एम सेइंग इफ यू हैव इनफ स्किल सेट देन definitely anyone can hire you if you have those capabilities. करेक्ट। लेकिन ओपनिंग्स जैसे नॉर्मली हम लोग कंपेयर करते हैं पहले से, 6 महीने, 1 साल पहले, उससे Exactly. कंपैरेटिवली कम दिखते हैं। काफी कम हो गई है, क्योंकि कोविड टाइम से काफी सारे मार्केट्स थे जो ऑफलाइन ही चलते थे, वो ऑनलाइन की तरफ मूव होने लगे। तो एट दैट टाइम बहुत ज्यादा बूम आ गया था, क्योंकि जो चीजें ऑफलाइन ही चलती थी वो भी ऑनलाइन पे मूव हो गया। ऑनलाइन पे मूव हुई है तो डेफिनेटली मल्टीपल जॉब भी क्रिएट हुई थी। तो एट दैट टाइम बहुत सारे जॉब क्रिएट हो गई है, स्लोली वो चीजें सेटल डाउन हो रही है। तो जो अननेसेसरी हायरिंग हो रखी थी वो सारी चीजें भी कम हो रही है, एंड धीरे धीरे स्लोली मार्केट रिकवर करेगा इससे। बट या, the one and the most important thing, if you have that skill set, no one can stop you. But yeah, number of jobs तो अभी थोड़ा कम है, but आप सीखते रहो, लर्न करते रहो, मार्केट एनालिसिस करते रहो, क्या टूल है, नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, हाउ यू कैन इम्प्रूव द प्रोसेस, क्यूए रिलेटेड चीज क्या आप एडिशन कर सकते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो मत करो, हाउ यू कैन रिड्यूस योर एफर्ट, these kind of things you can learn, and definitely if you have that capability no one can stop you. और क्योंकि नॉर्मली अभी एआई के भी बारे में बात कर रहे हैं कि एआई की वजह से भी जॉब्स कम हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि एआई का भी इम्पैक्ट है क्या? उसकी वजह से भी वो भी एक वन ऑफ द रीजन है? My thought is completely different. मुझे ऐसा नहीं लगता है, दो एआई कैन डेफिनेटली, मैं खुद भी एआई की हेल्प लेने लग गया हूँ आजकल। कोई भी हमारे पास ऐसे मेजर सिनेरियोज आते हैं ना, चैट जीपीटी पे खोलता है, और देयर आर सो मेनी टेस्ट बोट आल्सो क्रिएटेड, दे कैन गिव यू जनरेटेड टेस्ट केसेस, बट एक ह्यूमन ब्रेन जो थॉट कर सकता है, जिस वे में किसी चीज को ब्रेक करने की सोच सकता है, वो कभी भी एआई नहीं कर पाएगा, कभी भी एआई नहीं कर पाएगा। तो क्यूए के लेके तो मैं पूरा 100% श्योर हूँ। फंक्शनल जिस वे में अ पर्सन कैन ब्रेक द सिस्टम, एआई कभी नहीं कर सकता है। डेवलपमेंट का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चैट जीपीटी अपने कोड भी देता है, लेकिन क्यूए पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा, द वे अ ह्यूमन कैन थिंक, एआई कैन नेवर। सो करेक्ट। क्यूए आप एकदम सेफ हो, एआई कुछ हार्म नहीं करेगा। हाँ, आप उस एआई की चीजों को सीख के अपने करियर में एज एन एड ऑन ले सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, आप अपना खुद का टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, एंड दैट रिडक्शन इन टाइम यू कैन यूज टू लर्न न्यू थिंग्स। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि वो आपको हेल्प कर रहा है, बट पूरा उस पर रिलाई नहीं होना है। अपने खुद को, माइंड को कंस्ट्रक्टिवली चला के उसको कैसे ब्रेक करना है, कैसे वैल्यू एडिशन करना है, वो आपको सोचना है। तो डेफिनेटली ये जॉब नहीं लेगा, बल्कि जॉब में हेल्प करेगा क्यूए पर्सन के लिए। ऐसा मेंटर काम कर सकता है हमारे लिए। एग्जैक्टली लाइक कुछ चीज नहीं आ रही है तो वहां से अपने को एक गाइडिंग पॉइंट मिल गया, अच्छा ये इस वे में जा सकता है, अभी मैं इसको और ऐसे डाइवर्सिफाई कर देता हूँ, सो दैट आई कैन जनरेट मोर सिनेरियोज, मोर केसेस। करेक्ट। तो समझो कि फॉर कोर टेस्टिंग कंपनीज, आई एम एन ऑटोमेशन टेस्टर। तो ऑटोमेशन टेस्टर के लिए क्या स्किल्स होना चाहिए टू गेट कि मुझे कोर टेस्टिंग कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हो जाए? तो आपको क्या लगता है, ऐसा ऑटोमेशन टेस्टर हमको कितनी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्या क्या आना चाहिए ताकि हमारा कोर टेस्टिंग कंपनीज में सिलेक्शन हो जाए? So basically, what I feel in actually, I am in touch with multiple persons who are running a code testing company. One of them is in Ahmedabad, one of is in Pune, one is in Bangalore. So I am in continuous touch with the founders of them. So what their thought process is, वो
बस ये चाहते हैं उनको फ्रेमवर्क लेवल अंडरस्टैंडिंग हो, प्रोग्रामिंग उनको आती हो, बट उनको टेस्टिंग के कंसेप्ट क्लियर हो। प्रोग्रामिंग आप लर्न कर सकते हो, आप सिंटैक्स चेक कर सकते हो, लॉजिक अपने बिल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके टेस्टिंग के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो यू कैन नॉट बी अ गुड टेस्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंक्शनल टेस्टर, यू कैन नॉट बी अ गुड ऑटोमेशन टेस्टर, बिकॉज सपोज इन अ प्रोजेक्ट यू आर अलोकेटेड एज अ सिंगल ऑटोमेशन टेस्टर। अगर आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग आती है, आप टेस्टर के माइंड से सोच ही नहीं सकते हो, तो आप क्या वैल्यू ऐड करोगे? आप अपने सिनेरियो में सिर्फ सर्टेन ऑपरेशन करोगे कि ये डेटा फिल करके मेरे को बटन पे क्लिक करना है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊं। आप ये नहीं देखोगे कि मैं इसमें रॉन्ग डेटा इनपुट करने के बाद जो वैलिडेशन आ रहा है उस पे असर्शन लगाऊं, देन करेक्ट डेटा डाल के फिर फिल करके नेक्स्ट स्टेप में जाऊं। तो द मेन स्किल सेट ऑटोमेशन टेस्टर, डेफिनेटली यू नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ फ्रेमवर्क। सपोज यू आर इन जावा, देन आपको जावा में सिलेनियम, जावा, कुकुम्बर, जो भी टेस्ट इंजन जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी समझ होनी चाहिए, प्लस आपके टेस्टिंग कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिकॉज ऑटोमेशन का एक राउंड होता है और 2 राउंड टेस्टिंग स्पेसिफिक होते हैं जनरली इन कंपनीज में, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रियल टाइम सिनेरियोज दिए जाते हैं। पेन पेपर वाले सिनेरियो नहीं दिए जाते कि यू आर इन यूजिंग अ पेन, आप एक लिफ्ट में जा रहे हो, ऐसे सिनेरियो नहीं। रियल टाइम सिनेरियो दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जिसके लिए हायरिंग होती है उसके सिनेरियो दिए जाते हैं, सो दैट दे कैन थिंक, they can see how analytical you can think, how constructively you can think to add a value and to do your testing stuff as well, not just automation. ठीक है। नॉर्मली अभी सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर हो तो मेजर फोकस कोडिंग में ही है कि कोडिंग आना चाहिए, डीएस आना चाहिए, अल्गोरिथम, देन बाद में आता है कि टेस्टिंग आना चाहिए। तो ये अगर ऐसे देखें तो कोड टेस्टिंग कंपनी थोड़ा अलग है इंटरव्यू और वो Exactly. प्रोसेस में। एग्जैक्टली वहां पे मेन फोकस यही है कि आप पहले एक अच्छे टेस्टर बनो, देन आप ऑटोमेशन में जा सकते हो एंड यू कैन ग्रो देयर, बट टेस्टिंग स्किल होना मैंडेटरी है, अच्छी टेस्टिंग स्किल होना। तो अनुराग, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत लोग देख रहे होंगे, शायद कोई क्यूए में आना चाहता होगा या क्यूए में ऐसा फ्रेशर काम कर रहा होगा, तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे? सो एडवाइस सबके लिए मेरा यही है, नेवर स्टॉप लर्निंग। आप कंटिन्यूअस लर्न करने लग जाओ। देयर आर सो मेनी न्यू टेस्टर जो अभी काम कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलूंगा, आप अगर ब्राउजर पे चेक कर रहे हो तो आप कंसोल ओपन चेक करके लग जाओ, नेटवर्क टैब ओपन कर लो, वहां पे एपीआई कैसे फ्लो हो रही है वो चेक करो कि एक बटन के क्लिक पे मल्टीपल एपीआई कॉल हो रही है। आप और डेप्थ में जाओ, बग आइसोलेशन करना सीखो। ऐसा मत करो कि मुझे बग मिल गया, वो अपने लेवल पे आइसोलेट करो, उसका रीजन आइडेंटिफाई करो। अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आप ज्यादा सीखोगे। और नेवर स्टॉप थिंकिंग एंड लर्निंग। आपको अगर कोई टूल लग रहा है जो आप प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो, वैल्यू एडिशन हो सकता है जो आपका टाइम भी रिड्यूस करेगा एंड फ्रूटफुल भी होगा आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सीखो। मेरा एक ही सजेशन है, जो भी आप कर रहे हो दिल लगा के करो, अपनी थिंकिंग ब्रॉड रखो, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाओ, और मार्केट में अपडेटेड रहो। जो भी नया टूल आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपका अगर इंटरेस्ट हो, मैं ये नहीं बोलूंगा वो सीखो ही सीखो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो सीखो, उसको बिल्कुल सीखो, बट अपडेटेड रहो मार्केट में क्या चल रहा है। बाय दैट वे ओनली आप मार्केट में बराबर चल पाओगे। कोई नई टेक्नोलॉजी आओगी तो आप लर्न भी कर पाओगे इफ यू हैव इंटरेस्ट, एंड बी फोकस्ड, जहां पे आपका इंटरेस्ट है उस डायरेक्शन में जाओ। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच अनुराग अपना टाइम देने के लिए। आज का पॉडकास्ट हम लोगों ने थोड़ा अलग रखा था, मोर फोकस था कि कोड टेस्टिंग कंपनीज के बारे में, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, नॉर्मली दो ही पता होता, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो होप मतलब ये इन्फॉर्मेशन से लोगों को पता चला होगा कि कोड टेस्टिंग कंपनीज करके भी चीजें होती है। और थैंक यू अनुराग, आपने काफी इंसाइट्स दिए कोड टेस्टिंग कंपनीज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much, Siddharth, for inviting me. And yeah, थैंक यू। definitely, uh, uh, thank you so much. As I already said, thank you so much for inviting me, and hope this podcast can reach multiple audience so that they can learn new things, and definitely can reach out to you, me as well, for their help. So yeah, thank you करेक्ट। so much again for inviting me. या, थैंक यू, बाय। Okay, bye.